YCO2 gaseous, SiO2 is solid. CO2 का स्ट्रक्चर सबको पता है, राइट? CO2 is this linear shape, sp hybridized, but SiO2 का ये नहीं होता है. SiO2, why is CO2 gaseous but SiO2 solid? SiO2 का ये स्ट्रक्चर नहीं होता है. Why? क्या? SiO2 में what kind of a bonding are you seeing? ये वाला जो bond है, what kind of a bond is this? 3p 2p pi bond ना? It's a 3p bonding with a 2p pi. It's forming a bond. This is not strong. This is not strong. Therefore, 3p 2p pi bonds are not stable, and this is not the structure of SiO2. This is not the structure of SiO2. The real structure of SiO2 will be known to you at the end of the class. तुम लोग end of the class में तुम लोग real structure of SiO2 बनाओगे. Let's start. Let's draw the first structure of silicate. Let's study silicates. Study silicates now. The fundamental molecule or the basic unit, I will say, the basic unit of silicates is SiO4 minus 4. This is the basic unit of silicate. SiO4 minus 4. Silicon has how many valence electrons? 4. So, कितने bonds it is forming? One single bonds with all of these oxygen atoms. This is the structure of SiO4 minus 4, right? SiO4 minus 4. All the oxygens have one negative charge. This, what's the hybridization of this silicon in this? sp3 tetrahedral. Now, it is very important to, like this is 3D structure, and it is very important to show this 3D structure on a 2D plane. We have to show this. You will understand why. And sometime when we draw big chains of silicates, when we draw these big structures, you realize that we have to. It's much easier to draw it on a 2D plane. There's a representation for this which we can do on a 2D plane. So essentially, what is this? पहले तो ये देखो, right? This is a trigonal pyramidal. It's a trigonal pyramidal shape. क्या है वो? ऐसा ही. This is the tetrahedral structure. ये तो तुमको सबको पता होगा, right? Trigonal base है, and the structure is, and these are the 3 planes, right? So we need to represent this on a 2D plane. There's a way of representing this. Let's say I'm keeping it like this. Let's say I'm keeping the tetrahedral structure like this. ठीक है? Let's say I'm putting it like this, and let's draw it on a 2D plane. ठीक है? What can we do? I'm just keeping it here. So I'll draw this oxygen atom here first, right? And I will connect these oxygen atoms with each other. I'm just connecting. I'm just drawing the shape. Mind you, I'm not drawing the bonds here. This is the shape of the structure which is formed by this tetrahedral structure. This is the shape of the structure. Trigonal pyramidal. ये मैं बना रहा हूँ. ये वाले oxygen atom को मैं यहाँ represent करूँगा like this. ठीक है? These are the 3 oxygen atoms in plane. ये वाला it is here. So I will draw it here in the center. ठीक है? And इसका this will be bonded to this like this. This मतलब अगर मैं trigonal pyramidal वाला जो structure बनाऊँ तो it is bonded like this with this. तो इसको यहाँ represent करूँगा. इसका bond नहीं बोलूँगा. इसका that हाँ side will be like this और इसका side will be like this. तो this is the 3D representation. इसको clearly बना रहा हूँ. This is the 3D representation. These are the sides, mind you. These are not the bonds. Bonds तो अलग से हो रहा होगा. And where is a silicon in this? ये बीच वाला जो silicon है, ये तो middle में है कहीं, जो दिख नहीं रहा है हम लोग को. इस स्ट्रक्चर में तुमको ऑक्सीजन के बीच में वो नीचे है, तो it is represented like this. I have not drawn the bonds of this silicon with the 4 oxygen atoms, mind you. I have not drawn the bonds. I have just drawn the sides of the trigonal pyramidal structure. I have just drawn their sides or edges, I would say. समझ आ रहा है? ये this is a trigonal pyramidal structure जो form हुआ है. This is how you can represent this tetrahedral structure on a 2D plane. देखो, समझ आ रहा है? क्या? ऑक्सीजन है सारे, ये सारे ऑक्सीजन है. SiO4 -4 ये तो अभी बनाया ना. SiO4 -4
ब्लैक वाला सिलिकॉन है, नहीं सिलिकॉन देखो एसेंशियली ये बड़ा होता है, ये मेरे को सब मिला नहीं, दिस इज दीज आर बिग, दिस इज स्मॉल, तो इसलिए वो उसके नीचे ऐसे दिखाया जा रहा है, इट इज लाइक कि इसके नीचे है वो कहीं, एंड दिस इज द शेप ऑफ द, दिस इज द शेप ऑफ द टेट्राहेड्रल दैट आई हैव ड्रॉन हियर, समझ आ रहा है? ओके, नाउ वी विल यूज दिस टू ड्रॉ आवर स्ट्रक्चर्स. अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस, राइट, इसको मैं जस्ट ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो इसमें ऑल द ऑक्सीजन हैव माइनस चार्ज ऑन इट, बस हो गया, दिस इज SiO4 -4. यू विल रियलाइज कि ये अभी तुम लोग को अजीब सा लग रहा है, बट व्हेन वी ड्रॉ बिग स्ट्रक्चर्स सब इजी हो जाएगा. इसमें बॉन्ड नहीं बनता है, नहीं नहीं नहीं, इसमें सिर्फ शेप दिख रहा है तुमको, बॉन्ड नहीं बना रहे हो, बॉन्ड इज समवेयर हियर जो तुमको नहीं बना रहे हो तुम इसमें, समझ आ रहा है ये चीज? नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्ट्रक्चर. हाँ, बाय द वे दिस इज कॉल्ड ऑर्थोसिलिकेट, SiO4 -4 इज कॉल्ड ऑर्थोसिलिकेट. This is the structure of orthosilicate and it can be represented like this. ठीक है, next let's draw Si2O7 -6. Si2O7 -6, it is called pyrosilicate. This is called pyrosilicate. Let me give you a hint. One of the oxygen atoms is shared between two silicons. For now, one of the oxygen atom is shared between two silicons. बनाओ इसका नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो, मतलब अभी एक दो बार मैं तुमको नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने दे रहा हूं, उसके बाद यू रियलाइज कि बहुत इजी हो जाएगा इसके थ्रू बनाना, राइट. अब इसको इसमें रिप्रेजेंट करो, राइट. नॉर्मल स्ट्रक्चर तो ऐसा है ना, राइट, Si2O7 6 -6, ठीक है. इसको इसमें वन ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड बिटवीन टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स. क्लोज, बट थोड़ा एंगलिंग गलत है, नहीं मतलब ठीक है, थोड़ा एंगल गलत, हाँ मतलब तुम बनाए सही हो एक तरीके से, थोड़ा इसको वैसे ही बना सकते थे. लेट्स से दिस इज 1, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ये, और कुछ नहीं. राइट, हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है, बट इज समथिंग लाइक दिस ओनली, राइट. You can see the silicons are here, those silicons are here, the oxygen atom which is shared is here, ठीक है, and these three का oxygen atoms इसमें 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 they have negative charges, right. इसको थोड़ा और ऐसा बना सकते थे, ऐसा और एक ऐसा, मतलब यू कैन ड्रॉ इट जैसे भी, समझ में आ रहा है ना स्ट्रक्चर क्या है, राइट. दिस इज Si2O7 -6 पायरोसिलिकेट. हाँ बस ज्वाइंट है, वही है. ये क्या है देखो ना, दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट. अगर तुम इसको, इट्स अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, नॉट बाइपिरामिडल, इट्स अ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर जिसमें से एक ऑक्सीजन एटम इज जस्ट शेयर्ड बिटवीन देम. तो अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देख रहा हूं मैं, बस ऊपर से स्ट्रक्चर देख रहा हूं, इट लुक समथिंग लाइक दिस ओनली ना. एनी डाउट्स यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ लो, तो आगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रॉ बिग बिग स्ट्रक्चर्स. तुम दो ट्राइंगल को ज्वाइन कर रहे हो बेसिकली, अब वो जैसे ज्वाइन करना कर लो. हाँ लेकिन नहीं वैसे नहीं होगा, लेकिन तुम ये देखो ना, तुम सिलिकॉन को कहाँ बनाए हो इसमें, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, तुम जो वैसा बनाया वैसे भी सही है, दैट इज ऑल्सो, सीधा भी बना सकते हो, ठीक है, दैट इज नॉट अ बिग डील. इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि दो सिलिकॉन से बीच में ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, ये समझ में आया. नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट, अब देखो, अब नाउ इट स्टार्ट्स, लेट्स ड्रॉ सम साइक्लिक सिलिकेट्स.
Let's draw cyclic silicates. Cyclic silicates have the molecular formula as SiO3 N minus 2N. It is SiO3 N minus 2N. इसमें I will give you a hint. तुम लोग के सिलेबस में n equal to 3 और n equal to 6 ही है, तो लेट्स ड्रॉ इट फॉर n equal to 3 फर्स्ट. ये क्या हो जाएगा? Si3O9, क्या होगा बोलो? -6. ये तो हो गया Si3O9 -6. Now I will give you a hint that two oxygen atoms are shared per tetrahedron. 2 oxygen atoms are shared per tetrahedron. बनाओ. To use this. ट्राई करो, बहुत इजी है ये. 2 ऑक्सीजन, तुम पहले वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला मत बनाना, ठीक है? चलो बना लो. नहीं, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रन. नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इसलिए मैं बोला था मत बनाना, बहुत डिफिकल्ट होगा. इसमें से बनाओगे टेट्राहेड्रन तो बहुत इजीली बन जाएगा. और ये नाम कुछ दिख रहा है ऊपर, नाम पढ़ो पहले, अब बनाओ ना. मैंने नाम ही हिंट ही दे दिया, यही है. तुम करेक्ट बनाया, सबसे बड़ा हिंट मैंने दे दिया है. आप जल्दी से टेट्राहेड्रन्स को बना दो. हाँ वो तो रहेगा ही. चलो ठीक है, तो वो जो 2 नीचे वाले ऑक्सीजन है वो शेयर्ड हो रहे हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ. ऑफ कर दो. साइक्लिक सिलिकेट है, स्ट्रक्चर सही है, राइट. लेकिन आगे टेट्राहेड्रन के थ्रू बताओ मेरे को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग यू गेट कंफर्टेबल विद दैट. सेंचुरी देखो, ऐसा कुछ हो सकता है ना. I have told you 2 oxygen atoms are shared per tetrahedron. ठीक है, अगर मेरे को 2 ऑक्सीजन एटम शेयर करने हैं पर टेट्राहेड्रन तो मैं क्या करूंगा? बस हो गया ये. अब दूसरा कम बनेगा, हो गया. इन दोनों को भी बॉन्ड जॉइन कर दो. कितना इजी स्ट्रक्चर है ये. दिस इज द साइक्लिक सिलिकेट Si3O9 -6. अब -6 कहाँ कहाँ है ये बताओ. इनमें हो नहीं सकता, राइट. इसमें होगा. दीज आर द माइनस चार्जेस. दीज आर द 3 सिलिकॉन एटम्स एंड दीज आर द, ये देखो हर एक सिलिकॉन एटम में 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड. हर एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रन में 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड. अगर मैं इसको नॉर्मल मॉलिक्यूलर वे से बताऊं तो तुम लोग को इससे जल्दी समझ में आ जाएगा. बहुत इमेजिनेशन चाहिए. अब ये है Si3O9 -6. yes or no? हो रहा है ना? हाँ, Si3O9 -6. इसको मैंने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया बस. कहीं तो मुझे कुछ ये वाला गड़बड़ है. देखो ना कितने ऑक्सीजन एटम्स है, गिनो इसमें. गिनो, 7 है, 8 है, 8 है. तो ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट कंप्लीटेड ना. समझ आ रहा है कितना इजीली बनाया ये. बस मैंने, अब तुम कैन यू आइडेंटिफाई द 6 मेंबर्ड रिंग इन दिस. यहां पर ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है SiO SiO SiO, ये तो बॉन्ड्स दिखाया मैंने. दिस इज द स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है. इसमें 6 मेंबर्ड रिंग कहां दिख रहा है? SiO 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 दिख रहा है ये.
और ये ऐसा ही कि ऊपर वाला O माइनस है, ये वाला O माइनस है, O माइनस O माइनस, ये ऐसा ही कि ऊपर वाला O माइनस है यहाँ पर, ये वाला O माइनस है। तो टेट्राहेड्रली अगर तुम देखो स्ट्रक्चर को तो इट इज लाइक दिस ओनली ना, दीज टू ऑक्सीजन एटम्स आर बॉन्डेड। ये देखो दीज टू ऑक्सीजन एटम्स आर, अगर यहां देख लेते चलो बहुत इजी हो जाएगा, यहां तो ठीक है थोड़ा अलग वे से समझ में आएगा तुमको। ये मैं O माइनस को ऐसे बना देता हूँ, दिस इज अ वे ऑफ शोइंग इट ऑन 2D, लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखो तो इसमें कितना क्लियरली समझ में आ रहा है, दीज टू ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, ये O माइनस है, ये भी O माइनस है। नाउ लेट्स ड्रॉ इट फॉर n इक्वल टू 6, ट्राई करो n इक्वल टू 6 के लिए ट्राई करो। This will be Si6O18 minus 12, ट्राई करो। अब ये स्ट्रक्चर मत बनाने बैठ जाना, तुम लोग बनाते ही रह जाओगे। अब तुमको रियलाइज होगा कि ये कितना इजी हो जाता है इसके थ्रू। तीन था, अगर 3 टेट्राहेड्रन से अब कितने टेट्राहेड्रन होंगे? 6। अब उसको बना लो 6 टेट्राहेड्रन। सही है, बना, सही बोला, सही बोला। इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स गिनो, 18 नहीं आ रहा होगा। एंगल्स थोड़ा सोचना होगा तुम लोग को। ऑल द क्राफ्ट एंथुसियास्ट्स सब निकालो आज। ये अगर ऐसा है, इसके अगर बीच में मैं एक और यहाँ डाल दूँ, यहाँ एक और डाल दूँ, देन एक और ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, और ये कुछ आया समझ में? मैं बनाऊंगा तो है ही, अभी तो मैं सब हिंट दे रहा था। काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस। ये ऐसा है, राइट? एक ट्राइंगल ऐसा रख सकता था मैं, एक ट्राइंगल ऐसे रख सकता हूं मैं, और ये एक सीधा हो गया एक, एग्जैक्टली ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, बीच में हेक्सागोनल हो जाएगा वो। सोच के देखो, तुम जो बना रहे हो उसमें ऑक्सीजन एटम्स नॉट इक्वल टू 18 है। बनाओ बनाओ, हाँ तुम सही बना रहे। नहीं अभी भी नहीं बना। क्लोज, हाँ ठीक है, क्लोज क्लोज क्लोज, परफेक्ट, परफेक्ट बना दिया, परफेक्ट परफेक्ट। नहीं है, नहीं उसने बनाया। देखो क्या हो रहा है, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, क्या दिख रहा है? दिस द स्ट्रक्चर। क्या? हाँ मतलब ठीक ही है, राइट ही है, गलत नहीं है कुछ।
तुम उसको मैं थोड़ा सा बेंड करके इस वाले को देखो, द ओनली थिंग डिफरेंस इज हियर तुम्हारे और में, तो जस्ट अ मच बेटर। ये देखो इसमें वेयर विल द माइनस चार्जेस हियर एंड हियर, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, यहाँ पर काउंट द नंबर ऑफ माइनस चार्जेस टोटल 2 4 6 8 10 12, SI 6 O18, इसमें टोटल ऑक्सीजन एटम्स काउंट कर लो, यू विल गेट O18 minus 12, दिस इज n equal to 6, SI 6 O18 minus 12 का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। ये वाला तो बन गया होगा ना? अरे ठीक है, एक मिनट मैं वापस बना देता हूँ उसको, तो मैं वापस बना देता हूँ ना, यहाँ बना देता हूँ मैं, बना के रख लो, काम आ जाएगा। This is was for SI 309 minus 6. ठीक है, alright, let's move ahead. Now let's see some chain silicates. अभी तक तुम लोग cyclic देखे थे. Now let's see some chain silicates. Chain silicates can be of two types. They can be single chain silicates. Can be single chain silicates or double chain silicates. Single chain silicates can be chain silicates can be a single chain silicate or a double chain silicate. इसका formula is again this only, SiO3n minus 2n. But in this case that n is very large, मतलब it's just a chain, large chain. तो इसमें n is not defined and इसका molecular formula is Si4O11 n minus 2n. This is Si4O11 n minus 2n. This is commonly called pyroxenes. मतलब pyroxene minerals में ये दिखता है और ये amphiboles में दिखता है. These are the minerals in which it is found. We will also study about mica, quartz, feldspar, सबका देखेंगे. ये minerals होते हैं, पता है क्या? Pyroxenes, amphiboles. अच्छा ये colleges में आके समझ जाओगे. These are minerals. अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं ये सब. अर्थ के क्रस्ट में ये रॉक्स एंड मिनरल्स, these are very famous. ठीक है, नेक्स्ट इसका अब चलो ठीक है. फॉर सिंगल चेन सिलिकेट्स जस्ट राइट डाउन 2 oxygen atoms are shared. 2 oxygen atoms are shared per tetrahedron. Are shared per tetrahedron. 2 oxygen atoms are shared per tetrahedron. And for double chain silicates, it consists. चलो ठीक है, तुम लोग लिखो, ये बहुत लिखना होगा. For double chain silicates, मतलब फॉर्ड हटाओ, डबल चेन सिलिकेट्स में ये लिखो सीधा. It consists of 2 types of tetrahedrons. It consists of 2 types of tetrahedrons. It consists of 2 types of tetrahedrons. Type 1, 2 oxygen atoms are shared. 2 oxygen atoms are shared per tetrahedron. And type 2 is 3 oxygen atoms are shared. Are shared per tetrahedron. इसमें सिर्फ एक ही टाइप है, ये सिंगल चेन है और डबल चेन है. SiO3n minus 2n, Si4O11 minus 2n. ये पायरोक्सीन्स मिनरल्स में दिखता है, एम्फीबोल्स मिनरल्स में दिखता है. नाउ लेट्स ड्रॉप. पहले सिंगल चेन बनाते हैं. तुम लोग बना के देखो, सिंगल चेन होगा बस. 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड. बहुत कोई बना चुके हो पहले से ही.
हाँ हाँ नहीं क्या होगा, ट्राई करो। अरे एसेंशियली ठीक है, तुम लोग कुछ हो। एसेंशियली क्या होता है, क्या हुआ, एक टेट्राहेड्रन है, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रन, बस ये चलता जाएगा। Like grows on like this. This is a chain now. समझ आ रहा है, ऐसा चेन है ये, बस सिंगल चेन है ना, जैसा सिंगल चेन, इट जस्ट गोज ऑन हियर, इधर भी जाता जाएगा, इधर भी ये जाता जाएगा। सिंगल चेन ऑफ सिलिकेट्स, वेयर विल द माइनस चार्जेस लाई, हियर हियर। This is SiO3 minus 2n, single chain silicate. ये SiO3 minus n क्यों हो रहा है? तुम इसको ऐसे देखो, अगर ऐसे देखते हैं, इसका वे ऑफ सीइंग दिस इज लाइक दिस, तो ये 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, तो ये हाफ हाफ लिया जाता है इसके अंदर में। लाइक दिस इज कंसिडर्ड कि इस एक यूनिट के लिए इसका हाफ इज फॉर दिस यूनिट, इसका हाफ इज फॉर दिस यूनिट, तो दिस इज हाफ प्लस 2 which is 3, SiO3 minus 2 है। ठीक है, ये तो तुम लोग के इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस आई एम नॉट गोइंग, इसके लिए सॉलिड स्टेट में तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सब, ये तो ठीक है, कॉलेज में ऐसा सिखाया जाता है। बट दिस इज वाई दिस SiO3 माइनस SiO3 n minus 2n, ये होता है स्ट्रक्चर इसका। n मतलब इट्स अ पॉलीमर, लार्ज चेन पॉलीमर, इट्स अ चेन, बहुत ईजी है ये तो, इसे एक चेन बना दिया मैंने। वो डबल चेन है, that is only double chain, double chain silicates, you will have another chain of this, तो इसका another chain बना दो। क्या सकता है, दिस इज नाउ डबल चेन, 2 चेन बना दिया मैंने, दिस इज डबल चेन सिलिकेट्स, इधर जाएगा, इसलिए तो मैं बताया था तुमको। बता रहा हूँ, इट जस्ट गोज ऑन, दिख रहा है, डबल चेन, पहले एक सिंगल चेन था, अब डबल चेन हो गया। अब देखो जैसे सिंगल चेन का एक एग्जांपल तुमको देखने को मिलता है, CaSiO3, CaSiO3 ये देखने को मिलता है बहुत कॉमनली, कैल्शियम सिलिकेट्स n-2n, ठीक है। इसमें ये जो कैल्शियम प्लस है ना, कैल्शियम 2+, दे आर जस्ट आयनिकली बॉन्डेड टू दिस 2 ऑक्सीजन एटम्स, ऐसे कैल्शियम 2+ इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। दैट इज जस्ट यही चीज जो इसमें मिलता है, calcium silicates are very famous, that is for single chain silicates। अब double chain silicates is Si4O11 n-2n, इसमें Si4 कैसे होता है, इट्स ये तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो, वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दिस, बहुत इजी है वो कॉन्सेप्चुअली। हाँ, तो लेट मी टेल यू नाउ इन दिस tetrahedrons 2 oxygen atoms are shared per tetrahedron, right? इसमें there 2 oxygen atoms are shared per tetrahedron in this and this, ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम ही शेयर हो रहे हैं। इस ये जो टेट्राहेड्रन्स है जो बीच में है, इसमें कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, 3। So you have two types of tetrahedrons in this. In one, 2 oxygen atoms are shared. In another, 3 oxygen atoms are shared per tetrahedron, right? तो अब इसका जो नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा ना, बोलो इस वाले में अब नेगेटिव चार्ज कैसे रहेगा, यस और नो?
इस वाले ऑक्सीजन एटम पे पहले नेगेटिव चार्ज था, अब इसमें रह सकता है नहीं ना, ऑब्वियसली. दिस इज द डबल चेन सिलिकेट. नाउ दिस बिकम्स डबल चेन. यहां पर एक माइनस होगा, यहां पर भी. So essentially, we say that on an average, 2.5 oxygen atoms are shared per tetrahedron in double chain silicates. So on an average, 2.5 O atoms are shared per tetrahedron. ठीक है. These are chain silicates. क्या हुआ? These are chain silicates. ठीक है, ये थोड़ा तुम लोगों के लिए बहुत वो हो रहा है, but once you know this, it is very easy. चेन, एक ही चेन बना, डबल चेन. अब वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें मल्टीपल चेन्स भी तो कर सकते हैं. दैट इज द शीट. दीज आर द नेक्स्ट थिंग्स विच यू विल सी नाउ. इसको मल्टीपल चेन्स कर दो. दैट इज अ शीट सिलिकेट. ये चेन हुआ ना अभी तक तुम लोग चेन देखे हो. वन, यू हैव सीन सिंगल चेन, यू हैव सीन डबल चेन. इफ यू हैव जस्ट मल्टीपल अगर हो जाए चेन्स तो दैट्स अ शीट सिलिकेट. माइका सुना है? माइका, it has this structure. So in sheet silicates you can either have, क्या हुआ? इधर देख लो. You can either have 2D sheet silicates or 3D sheet silicates. 2D silicates माइका होता है, वो 2D शीट सिलिकेट्स होते हैं. एसेंशियली माइका तुम लोग जब देखोगे इट्स लाइक शीट्स, बहुत सारे शीट्स है उसके. माइका कभी देखा क्या? माइका इट्स बहुत सारे शीट्स होते हैं, बहुत सारे शीट्स. व्हाट आर दीज शीट्स? दीज आर जस्ट सिलिकेट्स ओनली. सिलिकेट्स आर कंप्राइज ऑफ 95%, मोर देन 90%, 95% एक्चुअली ऑफ द अर्थ क्रस्ट. हर जगह तुमको यही दिखेंगे. माइका देखो ना अगली बार तो तुमको ये समझना. नाउ चलो मैं इसको ऐसे बनाने वाला हूं, ठीक है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी. ये तुम लोग को बनाने का जरूरी नहीं है, तुम लोग बस देख लो. मैं इसको भी फॉर सिंप्लिसिटी ऐसा दिखा रहा हूं, ठीक है. लेट्स जस्ट ड्रॉ इट क्विकली. ये तुम लोग को बनाने का जरूरत नहीं है. बस और कुछ नहीं है. ये ऐसे जाता ही जाएगा, तुम लोग बनाने की जरूरत नहीं है कोई, इसमें छोड़ो. इट्स लाइक दिस शीट. नहीं, तुम लोग के लिए जरूरी नहीं है, मतलब तुम लोग को समझ में आ जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना. इट जस्ट गोज ऑन, ऐसे जाते जाएगा ये. दिस इज अ 2D शीट सिलिकेट. समझ आ रहा है? अभी इसमें देखो, बस इसको कंप्लीट अगर ड्रॉ करें तो इट्स लाइक दिस. दीज आर द टेट्राहेड्रल्स. इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तुमको उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगा. खींच लो, फोटो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं. Essentially the thing which will be asked to you in your exams now, which is how many number of oxygen atoms are shared per tetrahedron. बोलो how many oxygen atoms are shared per tetrahedron.
3. Just write it down in your notes. 3 oxygen atoms are shared per tetrahedron in a 2D sheet silicate. 2D sheet silicates का फॉर्मूला होता है Si2O5 N-2n. रुक जाओ. For 2D sheet silicates, the formula is Si2O5 -2n. And ये दिया है ना, Si2O5 N-2n. These are 2D sheet silicates. ये चलता ही जाएगा. और 3 oxygen atoms are shared per tetrahedron. चेन सिलिकेट्स में 2 oxygen atoms were shared. डबल चेन में, सिंगल चेन में 2 oxygen atoms were shared. डबल चेन में you can have 2 and 3, 2.5 oxygen atoms were shared. In 2D sheets, 3 oxygen atoms are shared. यहां तक समझ आया सबको? अब ये शीट के ऊपर एक और शीट डाल दो. ये शीट, यही शीट ऑफ टेट्राहेड्रन्स है, इसके ऊपर एक और शीट डाल दो, सेम टू सेम. अब वो शीट चलता जाएगा. दैट इज 3D. दैट इज 3D शीट सिलिकेट्स. वो 3D शीट सिलिकेट्स है. हाँ बस जैसे भी. एंड दैट लुक्स ब्यूटीफुल वाला चीज. अब नाउ दैट 3D शीट सिलिकेट जो तुम एक साथ बनाते जा रहे हो, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड? 4. एंड दैट माय फ्रेंड इज SiO2. दैट इज SiO2. ये है बालू मिट्टी, देखते हो ना, वो ये है शीट्स, 3D शीट्स. दीज आर द 3D शीट सिलिकेट. जब अगली बार मिट्टी देखो ना, सोचना ये सब. क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पर. क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्स्पर कंप्राइज ऑफ, लाइक दे आर द मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स इन अर्थ्स क्रस्ट. सबका स्ट्रक्चर इज दिस 3D शीट सिलिकेट्स. तो मेन थिंग टू नोट हियर इज कि देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स व्हिच आर शेयर्ड इन क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पर, दीज 3D शीट सिलिकेट्स में. एसेंशियली तुम लोग के स्कूल बुक्स रहेगा ना, उसमें ऐसा दिया हुआ रहेगा तुम लोग को. पता चल जाएगा. सॉलिड स्टेट में पक्का है. ये रेक्टेंगल है. तो हाँ, मतलब इजी बेस है. अगर तुमको मैं दिखाऊं, ये तुम लोग को स्कूल बुक्स में ऐसा दिया हुआ रहेगा, ऐसा चलता जाएगा. तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये कि एवरी सिलिकॉन, ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड. द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड. राइट, इसलिए इसका SiO2 है, कोई चार्ज नहीं है. तुम्हारे शायद बुकलेट्स में चेक कर लो, उसमें SiO2 N-2n है, उसको चेंज कर देना. दिस इज जस्ट SiO2 N. -N नहीं, मतलब -2n नहीं रहेगा. कोई चार्ज नहीं है. ऑब्वियसली कैसे हो सकता है चार्ज? क्या? हाँ ठीक है, तुम लोग को एग्जाम्स में यही रहेगा. एग्जाम्स. बट ये इंपॉर्टेंट था तुम लोग को दिखाना कि ये स्ट्रक्चर्स ऐसे रहते हैं. यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ. नहीं, SiO2 ट्रायंगल्स ही रहते हैं, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर. इसमें जहाँ ऐसे दिखाया था कि ऑल द 4 एंगल्स आर शेयर्ड, ऑल द 4 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, ये ऐसा तुमको बुक्स में मिलेगा. नहीं, एक्चुअली यही एक्चुअली जो मैं दिखाया हूँ तुमको, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कि एक्चुअली तुमको नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर्स कहीं, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अराउंड बहुत क्वेश्चंस रहते हैं. ग्रुप 13 बोल के होगा तुम लोग का. इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट. 11 में है ये. ग्रुप 14, सॉरी, ग्रुप 14, ग्रुप 13 का भी हम आज एक चीज और देखेंगे. बस वन लास्ट थिंग बिफोर वी स्टॉप. वन लास्ट थिंग, ये सिलिकेट्स है. दिस वाज ऑल अबाउट सिलिकेट्स. हाँ क्या? ठीक है, यही है, ये ऐसा बनेगा. इसका नीचे वाले स्ट्रक्चर्स देखो, और बहुत मिलेंगे तुमको. बहुत कॉम्प्लेक्स होगा तुम लोग के लिए, अभी बहुत सारे शीट्स होंगे. ऑलराइट, लेट्स लास्ट थिंग बिफोर वी मूव. एसेंशियली तुम लोग के स्ट्रक्चर्स बनाना जरूरी नहीं है, एक बार देखना जरूरी है. तुम लोग को समझ में आएगा नहीं, तुम लोग बनाओगे थोड़ी ना सब स्ट्रक्चर्स हर बार.
बट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज, तुम लोग को अब ये स्ट्रक्चर पता होगा तो यू कैन लाइक आंसर ऑल द क्वेश्चंस. लास्ट थिंग दैट वी स्टडी इज सिलिकॉन्स. सिलिकॉन सुना है? सिलिकॉन्स पॉलीमर्स. क्या हो गया? जाना है, चले जाओ, दिक्कत नहीं. तो सिलिकॉन्स आर पॉलीमर्स. इसका इतना यूज है तुम लोग सोच नहीं सकते हो. इट इज लाइक यूज्ड सिलिकॉन. तुम लोग को मोबाइल कवर नहीं होता, सिलिकॉन पॉलीमर्स. दीज आर दिस पॉलीमर्स. इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है ये. यूएस में इम्प्लांटेशंस में यूज होता है ये बहुत ज्यादा. ये पॉलीमर, दिस आर वेरी वेरी कॉमनली फाउंड पॉलीमर्स. These are a group of organosilicon polymers. Organosilicon polymers. Essentially SiC bonds होते हैं इसमें. सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं. कार्बन कार्बन तो देखा है, सिलिकॉन कार्बन भी होते हैं. सिलिकॉन बॉन्ड्स भी होते हैं, लेकिन उनका कैटिनेशन प्रॉपर्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. राइट? Si16 तक देखा गया, Si16 तक देखा गया है. उसके आगे इट्स स्टिल, मतलब इट्स उतना द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू कार्बन. एंड सिलिकॉन कैन लाइक दे कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड्स ऑल्सो. थ्री पी पाई बॉन्ड्स जो फॉर्म होंगे दैट इज ऑल्सो वीक. तो इसलिए सिलिकॉन से डबल बॉन्ड्स विथ इट्स सिलिकॉन्स वो नहीं दिखता. Si डबल बॉन्ड्स इट्स नॉट फाउंड, दैट्स बिकॉज दैट इज वेरी वीक. ठीक है? नहीं, Si बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. They are strong bonds. So let's see the like preparation of these silicones. Silicones का formula is this: R2SiO. R2SiO. It's a polymer. बता रहा हूँ मैं. R is alkyl और aryl group. Aryl तुम लोग तक पढ़े नहीं हो, ठीक है, but alkyl groups CH3 plus CH3, these are alkyl groups. ठीक है? It can be, ये बस लिख के रख लो भी, तुमको थोड़े दिन बाद अपने आप समझ में आ जाएगा ये. These are alkyl or alkyl groups. Let's see the preparation of silicones. Essentially, the first thing, it's called a direct process. Essentially, this is a industrial process. देखो तुम लोग को इतना डिटेल्स में जानने का जरूरी नहीं होगा, but I'm just giving it to you everything. देखो इसमें क्या होता है, CH3Cl plus silicon. It's a fluidized bed of silicon. इंडस्ट्री में ऐसा बनता है. This is I'm giving you industrial process. कैसे बनता है ये? You have a fluidized bed of silicon and you have copper present as a catalyst at 573 Kelvin. It gives CH3 whole twice SiCl2. This is the maximum yield, plus you also get some amounts of CH3 whole thrice SiCl plus CH3 SiCl3. You get in these in minimum, like बहुत कम yield होता है. This is maximum yield. These are called, this is called dimethyl. ये लिख लो अच्छे से, dimethyl dichlorosilane. This is called dimethyl dichlorosilane. ये हो जाएगा ट्राईमिथाइल क्लोरोसिलेन. ट्राईमिथाइल क्लोरोसिलेन ये हो जाएगा मिथाइल ट्राईक्लोरोसिलेन. सिलेन इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सब क्लोरोसिलेन्स आर वेरी कॉमनली फाउंड कंपाउंड्स. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है. इन हाइड्रोलिसिस सी लेट्स व्हाट हैपेंस. दिस इज SiCl2. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल, राइट? टेट्राहेड्रल. इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. लास्ट क्लास में हम हाइड्रोलिसिस पढ़े थे. लेट्स जस्ट डू द हाइड्रोलिसिस वंस मोर. इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है. आई एम जस्ट गिविंग यू द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स. इसमें क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा. तुम लोग बताओ, हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. इट विल गो टू sp3 dehybridization. वो एक OH will attack with its lone pair here 2, and silicon, since silicon has a empty d orbital, empty 3d orbital, it can accept the lone pair, so it can form this.
ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट, ये जाएगा, ये एक जाएगा, राइट, -H2O, यहाँ बनाता हूँ, एक और -H2 होगा, प्लस HCl बना, तो एक और -H2 ओके, यू विल फॉर्म दिस, सॉरी अगेन हाइड्रोलिसिस में यू विल फॉर्म दिस, ये हो गया, HCl बना होगा, वो मैं नहीं लिख रहा, यहां तक समझ में आया, राइट। अब देखो इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, द नेक्स्ट स्टेप इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ये हो रहा है, इसको पॉलीमर कर बना, इसका पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जस्ट प्लेस दिस लाइक दिस, जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम। क्या हो सकता है जिस तरह से मैं बनाऊंगा अभी, क्या निकाल सकते हैं हम इससे, अरे यार हाँ हाँ, ये N है, इसमें क्या हटा सकता हूं मैं, पानी हटा दो इसका, बस और कुछ नहीं है। तो दिस यू फॉर्म दिस ऑन -H2O, -NH2O मैं जानबूझ के लिख रहा हूं बिकॉज इट्स अ पॉलीमर। just goes on like this। ठीक है, तुम लोग के लिए ये इतना प्रोसेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। होगा, राइट राइट, वो बेंड ही होगा, हाँ, लेकिन मैं इसको जैसे एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ तुमको अभी, ये बेंड ही होगा, राइट राइट राइट, उसका वैसा स्ट्रक्चर बनता जाएगा। बट अभी इस लाइक चेन पॉलीमर के लिए मैं तुमको बस दिखा दे रहा हूँ, वैसे भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे बनाना है क्या, वैसे भी बना सकते हो, लाइक तुमको बुक्स में ऐसे मिलेगा। आई एम जस्ट, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज, नाउ दिस इज सिलिकॉन, दिस इज द सिलिकॉन पॉलीमर विच इज, इस केस में इट इज CH3 होल ट्वाइस SiO, ये एसेंशियली ये, दिस इज 1 यूनिट ऑफ सिलिकॉन, इस केस में इट इज लाइक दिस, CH3O। ये माना जाता है कि ये ऑक्सीजन एटम दूसरे से आता जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट चेन, इसका दिस इज द सिलिकॉन पॉलीमर। ऑब्वियसली इट कैन बी लाइक, इसका मैं पूरा बेंड शेप नहीं बनाया अभी, ओके, दैट वुड बी द रियल स्ट्रक्चर। आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो हियर कि देयर विल बी O बॉन्ड्स लाइक दिस गोइंग ऑन लाइक दिस, ठीक है, यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो। उसको भी तुम लोग वैसे बना लेना, जब बनाओगे यू विल जस्ट मेक श्योर कि दीज आर ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडेशन वाले, ठीक है, मेक श्योर दैट। हाँ ओके, दिस विल बी एन, दीज आर सिलिकॉन पॉलीमर्स। अब तुम मेरे से ये चीज पूछ सकते थे कि ये चेन चलता जाएगा क्या, नाउ देयर इज अ मेथड ऑफ स्टॉपिंग दिस, चेन को स्टॉप करना होता है। फॉर स्टॉपिंग दिस वी यूज दिस, ये CH3 होल ट्वाइस SiCl3 है ना, इसको ऐड किया जाता है बिफोर हाइड्रोलिसिस, इसको ऐड किया जाता है, सॉरी ये होल मन होगा, दिस को ऐड किया जाता है। तो अगर इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा, CH3 OH CH3 एक चीज दिख रहा है इसमें कुछ, वन एंड इज ब्लॉक्ड बाय CH3, यहां पर OH प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है ये लास्ट में जाके लग जाता है इसमें। दिस इज कॉल्ड अ चेन स्टॉपिंग यूनिट। ये तुम लोग एग्जाम से बहुत कॉमनली पूछ सकते हैं, व्हाट इज द चेन स्टॉपिंग यूनिट इन सिलिकॉन्स। नहीं, दिस इज नॉट CH3 होल ट्वाइस, ये है एक्चुअली चेन स्टॉपिंग यूनिट इज दिस अपन हाइड्रोलाइसिस गिव्स यू दिस, ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन इज द चेन स्टॉपिंग यूनिट, ठीक है। ये क्या होगा कि ये कोई एक एंड में लग जाएगा यहाँ के, इट इज लाइक दिस, मतलब इस एंड में मैं अगर इसको लगा दूं, ये हो गया, ये चेन स्टॉप हो गया यहाँ, इट कैन गो टू बोथ द एंड्स। तो एसेंशियली द रेशियो इन विच यू आर मिक्सिंग ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन and dimethyl dichlorosilane, that determines the size of your polymer.
ऐसे इंडस्ट्री में बनता है. द मिक्सचर्स, द रेशियो इन विच यू आर मिक्सिंग दिस ट्राइमिथाइल क्लोरोसिलेन एंड डाइमिथाइल क्लोरोसिलेन, दैट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द पॉलीमर. तुमको जितना बड़ा चाहिए उतना ही ज्यादा तुम डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन डालोगे, जितना छोटा चाहिए तुम इसको ज्यादा कर दोगे. इसका यूजेस, नाउ लेट मी टेल यू द यूजेस ऑफ दिस. इसका इतना यूज है बिल्डिंग्स के जो बिल्डिंग्स में जो दिस, हाँ ठीक है, these two ends, these are the water repelling ends. CH3 group is non-polar in nature, so these are water repelling nature, and that is why silicones are a very good water repellents. तो मैं बिल्डिंग्स में हम लोग शीट्स देखते हैं ना जो वाटर रिपेलेंट्स होता है यूज होते हैं, उसमें सिलिकॉन्स यूज होता है. सिलिकॉन्स आर यूज इन दैट. देन सिलिकॉन्स आर आल्सो यूज इन योर मोबाइल फोन. सिलिकॉन्स का देखा ही है तुमने. दे आर आल्सो यूज इन एज डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स in industries. They are also used as that. Then they are also used as grease. They are very good like lubricants also. They are grease होता है, तो shoe polish, car polish उसमें use होता है ये. They are also used in implantation processes. They are also used in beer making processes. Beer making process में fermentation में काम आता है ये. और बहुत use है इसका. This kind of polymer is a very like useful polymer. ये अगर होगा तो ये चेन स्टॉपिंग होता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सिलिकॉन्स. सिलिकॉन्स का तुम लोग को ऑब्वियसली इतना कुछ याद करना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट क्या यूज हो रहा है दिस डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन से, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड दीज नॉन पोलर एंड्स विच आर मेकिंग इट वाटर रिपेलिंग इन नेचर. एंड ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल बॉन्ड. हाँ, जो तुम बनाया वैसे वैसा स्ट्रक्चर रहता जाएगा.